السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیے جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے روح یارم، اور اس ناول کو لکھا ہے عریشہ نے، اور آج ہے اس ناول کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 15ویں ایپیسوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ آج اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کل میں اس ناول کو اینڈ کر دوں، تو دیکھیں پھر کیا بنتا ہے، کر سکوں گی کہ نہیں۔ اگر اینڈ ہو گیا کل تو پھر آج یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور کل اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو پھر ہم اس کے بعد مزید 2 ویڈیو ڈالیں گے اگر میں کمپلیٹ نہ کر پائی تو۔ چلیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بالکل نہیں جانا، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی۔ جی، آج بہت دنوں کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ پورا گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ روح کی کمی ہر چیز میں شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کتنا تنہا تھا وہ اس کے بغیر، لیکن بہت غصہ بھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا۔ بس بہت ہو گیا روح، اب میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جب تک تم بلاؤ گی نہیں میں کیسے آؤں گا؟ پلیز بلا لو روح، موبائل پر اس کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا، اور پھر فاطمہ بی بی کا نمبر ملانے لگا۔ بیٹری لو ہے، اس نے بیٹری کو دیکھتے ہوئے کہا ہے۔ کون سا؟ روح نے مجھ سے بات کر لینی ہے۔ وہ فون اٹھا کر باہر اپنے موبائل کو چارجر پلگ کرنے لگا، جب نظر ایک فائل پر پڑی جس پر مسز یارم کاظمی لکھا تھا۔ یہ وہی رپورٹ تھی جو اس دن وہ ہاسپٹل سے لائی تھی۔ معصومہ نے جانے سے پہلے بتایا بھی تھا کہ رپورٹ باہر ٹیبل پر پڑی ہے۔ اس نے جلدی سے فائل اٹھا کر کھولی، لیکن رپورٹ پر نظر گئی، وہ بھی بے یقینی سے بار بار پڑھنے لگا۔ روح پریگننٹ؟ میں باپ بننے والا ہوں؟ میرا بچہ؟ روح ماں بننے والی ہے؟ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس وقت وہ اپنا سارا غصہ، ہر ناراضگی بھلا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے فون نکالا۔ ہلو 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 سارم، میں بات کر رہا ہوں یارم، یارم نے جلدی سے بتایا، جبکہ اس کی آواز سے ہی سارم اس کی خوشی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ شاید روح واپس آ چکی تھی، تبھی تو اسی کو فون ملا کر اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آگے بول، میں جانتا ہوں تو یارم بات کر رہا ہے، سارم نے کہا۔ میں باپ بننے والا ہوں، یارم نے خوشی سے بتایا۔ بہت 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 مبارک ہو یارم، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں چاچا بننے والا ہوں۔ روح واپس آ گئی کیا؟ سارم نے پوچھا۔ یارم کی خوشی مان پڑ گئی۔ نہیں، لیکن اب آ جائے گی، میں لے آؤں گا اسے، یارم نے جلدی سے فون بند کیا۔ اگلا فون اس نے خضر کو ملایا تھا۔ میں اپنی روح کو لینے جا رہا ہوں، اس نے اسلام دعا کا تکلف کیے بغیر کہا۔ خضر کو لگا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں ٹکٹ بک کروا دوں؟ اب وہ یارم سے یہی پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، پہلے مٹھائی منگوا، سب کو بانٹ، پھر میری ٹکٹ بک کروا۔ مٹھائی کس لیے؟ روح کو واپس آنے تو دے۔ آج خضر کو یارم کی کھسکا ہوا لگ رہا تھا۔ ابے مٹھائی گرو کی واپسی کی خوشی میں نہیں، میرے باپ بننے کی خوشی میں ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ جس دن روح یہاں سے گئی اس دن کی، یارم نے بتایا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنے دنوں سے پتا ہے تمہیں، تم نے اسے جانے کیسے دیا؟ خضر کو اب اس پر غصہ آنے لگا۔ اور بھائی مجھے نہیں پتا تھا، مجھے تو آج پتا چلا ہے، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، اس لیے ہاسپٹل گئی ہے۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، مجھے پاکستان جانا ہے اپنی روح کے پاس۔ اوکے باس، میں 2 ٹکٹ بک کرواتا ہوں، ایک تیرے لیے اور ایک اپنے لیے، ہم دونوں چلتے ہیں، خضر نے خوشی سے کہا۔ خضر، وہ ماں بننے والی ہے، بنی نہیں ہے، اسی لیے تو نہیں، صرف میں جا رہا ہوں، میں اسے لے کر واپس جلدی آ جاؤں گا، یارم نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ اب بول۔ اوکے باس، یار ہم نے باقاعدہ اس کا مذاق اڑایا تھا۔ خضر ہنس دیا۔ کتنے دن کے بعد وہ خوش تھا۔ رات کے 12 ہونے والے سے جب فاطمہ بی بی واش روم جانے کے لیے اٹھیں تو فاطمہ بی بی ابھی مت جائیے، روح نے روکنا چاہا۔ کیوں نہ جاؤں؟ فاطمہ بی بی حیرانگی سے پوچھا۔ ارے فاطمہ بی بی، 5 منٹ میں نیا سال شروع ہونے والا ہے، اگر آپ کو ہوش میں 5 منٹ لگ گئے تو آپ جائیں گی 2019 میں اور واپس آئیں گی 2020 میں۔ روح نے تانیہ کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہکا لگایا۔ رک جا، مجھ سے مستی کرے گی تو؟ فاطمہ بی بی اس کا کان مروڑ کر واش روم چلی گئی۔ کتنی شرارتی رہتی ہو تم، تانیہ اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ تبھی دروازہ بجا۔ ہائے، یہ 2020 کی شروعات ہونے سے پہلے کون ٹپک پڑا؟ بے وقوف، رات کے وقت کون ہو سکتا ہے؟ فاطمہ بی بی تو واش روم میں ہے، پتہ نہیں دروازے پر کون ہے۔ باجی آپ جا کے دیکھیے نا، پتہ نہیں کون ہوگا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، روح بستر میں گھستے ہوئے بولی۔ ہاں تو کیا صرف تمہیں ڈر لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، میں نہیں جا رہی۔
तानिया बीबी बिस्तर में घुस गई और दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। मजबूरन रूह को उठकर दरवाजे की तरफ जाना पड़ा और बुरी आदत जो यारम की डांट खा खा कर गई थी, उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। हैप्पी न्यू ईयर मेरा बच्चा। वो बेयकीनी से सामने खड़े थे, मुस्कुराते हुए शख्स को देख रही थी, जबकि वो अपने डिंपल की नुमाइश करता झुककर उसका गाल चूम चुका था। यारम, रूह बस इतना ही बोल पाई, तुम्हारा यारम। इससे पहले कि यारम आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाता, पीछे से फातिमा बीबी आ गई। यारम मेरे बच्चे। फातिमा बीबी बाहें फैलाए उसकी तरफ आ रही थी, जब यारम ने आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अम्मी, वो इनके गले लग गया, जबकि फातिमा बीबी ज़ारो कतार रोते हुए उसके नक्कूश को अपने लबों से चूम रही थी। मेरा बच्चा तो वापस आ गया, वो रोते हुए बोली। आपने तो इन्हें बुलाया, आपने तो नहीं बुलाया, पर मुझे तो आना ही था। वो इनके आंसू साफ करते एक बार फिर से इन्हें अपने गले से लगाने लगा, जबकि रूह दरवाजे पर खड़ी अभी बेयकीनी से इन दोनों को देख रही थी। तो क्या यारम फातिमा बीबी के बेटे? रात की तकरीबन पौने 2 बजे वो अपने घर से अपनी सारी ज्वेलरी लेकर भाग गई थी, जो उसकी शादी के लिए उसकी माँ और भाइयों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। वो लोग धूमधाम से उसकी शादी करना चाहते थे, अपनी इकलौती बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते थे, लेकिन वो मोहब्बत की राह में बहुत आगे निकल चुकी थी। इतनी आगे कि इसे इस मोहब्बत के सामने अपनी माँ और भाइयों की मोहब्बत भी बेमोल लगने लगी। रेलवे स्टेशन पे इब्राहिम बेताबी से उसका इंतज़ार कर रहा था। आपने जो कहा था मैं सब कुछ ले आई हूँ, इब्राहिम, लेकिन काश अगर घर वाले मान जाते तो मैं कितनी खुशी से आपके साथ रुखसत होती। लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशी लिखी ही नहीं है। तुम घबराओ नहीं फातिमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ से चलते ही निकाह कर लेंगे। इब्राहिम इसका हाथ थामते हुए ट्रेन में सवार हो गया, जबकि वो अपने शहर, अपने माँ भाइयों की इज्जत को पैरों तले रौंदते उसके साथ हो गई। वो बड़ी मस्जिद के कारी साहब की सबसे छोटी और इकलौती बेटी थी। उसके 3 बड़े भाई थे। कारी साहब के बाद इन भाइयों ने बहुत लाड प्यार से उसे पाला था, और आज इन भाइयों का सर झुकाते हुए फातिमा ने एक बार भी ना सोचा, शायद मोहब्बत ऐसी होती है, बागी कर देने वाली। ये बस एक ही इंसान के साथ जोड़ देती है, जज्बात भी, एहसासात भी। ये इतनी खुदगर्ज होती है कि किसी तीसरे को बीच में शामिल नहीं होने देती। शादी के बाद कुछ अरसे तक ही इसे इब्राहिम की मोहब्बत दिखने को मिली। जल्दी इस पे इब्राहिम की हकीकत खुलने लगी। इब्राहिम एक नशेई और जवारी इंसान था, जिसे वक्ती तौर पर फातिमा की खूबसूरती ने अपनी तरफ रागिब किया था। जल्द ही इस पर से फातिमा का नशा उतर गया, और वो अपने पुराने कामों में इस हद तक मगन हो गया कि इसे फातिमा का होश ही ना रहा। फातिमा की सारी ज्वेलरी और पैसे जो अपने घर से लेकर आई थी, वो तो पहले ही उससे लेकर उड़ चुका था। उसके लिए किसी भी लड़की को अपनी तरफ रागिब करना कोई बहुत मुश्किल काम ना था। वो इतना खूबसूरत है कि कोई भी लड़की उससे एक बार देखकर उसकी तरफ मतवज्जो हो जाती। उसकी आंखों में ऐसा सहर था जो किसी भी लड़की को आसानी से अपना शिकार बना सकता था। फातिमा भी उसका एक शिकार थी, लेकिन फातिमा की खूबसूरती ने ही उससे शादी करने पर मजबूर किया था, जिस पर अब वो पछता रहा था, क्योंकि फातिमा की जिम्मेदारी उठाना उसके बस से बाहर था, वो भी तब जब वो माँ बनने वाली थी। उसने फातिमा को बहुत मजबूर किया कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन फातिमा ने उसकी एक बात न मानी। खुद ही घर में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाकर अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाई। इब्राहिम ने तो असगर के पैसे वापस नहीं किए। अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुझे हर तरफ ढूंढ रहा है। जा, भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि वो तेरी जान ले ले। जब नशे की तलब हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो वो लोगों से उधार लेने लगा। इन्हीं में से एक असगर भी था, जो कि एक बहुत ही बदनाम गुंडा था। लोगों को कत्ल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी खूबसूरत औरत, जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो लोगों को उधार देता, और जब लोग उसका उधार ना चुका पाते तो वो अक्सर उनकी औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन करता था। और इस तरह से एक बार उसने फातिमा को देख लिया, जो जानते हुए भी कि वो एक 12 साला बेटे की माँ है। जबरदस्ती उसने इब्राहिम को इतना पैसा दे दिया जिसे वो चुका ना पाए, और एक नशेई इंसान के लिए पैसा उड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं होती। इब्राहिम ने वो सारा पैसा नशे में उड़ा दिया, और अब असगर उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। असगर भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। और कितना वक्त चाहिए तुझे? 6 महीने से तू वक्त 6 महीने से तो वक्त दे रहा हूँ। अब मुझे मेरा पैसा अभी इसी वक्त चाहिए, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं, खुदा के लिए मुझे मत मारे। मेरा एक बच्चा है, मेरे बाद वो यतीम हो जाएगा। किसके सहारे जिएगी मेरी बीवी? रहम करें मुझ पर, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे सारे पैसे एक ही रात में चुका सकता है। असगर ने अपनी शातिराना दिमाग से चाल चलते हुए कहा, तो अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे, वो एक ही रात में तेरा सारा कर्जा चुका देगी। असगर हवस ज़्यादा लहजे में बोला, नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो बहुत पाकीज़ा है।
वैसा घटिया काम कभी जिंदगी में नहीं करेगी। तेरी जान बचाने के लिए तो करेगी ना। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जा अपनी बीवी को मेरे पास ले आ, बल्कि आज रात मैं तेरे घर आऊंगा। अगर मानता है तो ठीक है, वरना तेरे बीवी बच्चे के सामने तेरी जान ले लूंगा और फिर उसे एक रात नहीं बल्कि जब तक चाहूं अपने पास रखूंगा। असगर कहका लगाता वहां से निकलता चला गया। फातिमा ने एक जोरदार थप्पड़ इब्राहिम के मुंह पर दे मारा। ये तो पता था कि तुम घटिया हो, नशेई हो, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम मेरा ही जुआ खेल के आ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेचने की? घटिया इंसान, तुम्हारे साथ आकर मैं पिछले 14 साल से पछता रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी इतने घिरे हुए नहीं लगे कि ये हरकत करो। मैं आज तक तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे तुम्हारी नजरों में अपने लिए इज्जत नजर आती थी, वरना तुम जैसे नशेई और जवारी इंसान के साथ एक पल गुजारना नामुमकिन है। मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के 14 साल गुजार दिए और अब तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। अब रे, अरे कब की छोड़कर चली जाती तुम्हें अपने बच्चे को लेकर, सिर्फ इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। मैं इस पर से तुम्हारा साया छीन नहीं सकती थी, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत साबित किया। एक बार उसकी तरफ मुड़कर मोहब्बत से नहीं देखा, लेकिन आज तुम अपनी हर हद पार कर चुके हो इब्राहिम। तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती मैं। जा रही हूँ अपना बच्चा लेकर। अभी उसने आगे बढ़कर यारम का हाथ थामा ही था कि जोरदार धमाके से दरवाजा खुला। इब्राहिम, अपने बेटे को ले जा यहाँ से। उसने यारम को पकड़कर इब्राहिम की तरफ धक्का दिया, जबकि अगले ही लम्हे उसका बाप उसे अपने हाथों में काबू कर चुका था और फातिमा को असगर जबरदस्ती कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। छोड़ मुझे, घटिया इंसान, मैं कहती हूँ छोड़ मुझे। फातिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे मेरी बुलबुल, इतनी आसानी से छोड़ दूं तुझे? इतनी कीमत दी है तेरी, कसम से इतने बड़े बच्चे की माँ है फिर भी कमाल दिखती है। छोड़ मेरी माँ को, वरना मैं जान से मार डालूंगा। यारम ने गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन इब्राहिम इसे बुरी तरह अपनी कैद में लिए हुए था। खून जोश मार रहा है तेरे बेटे का इब्राहिम, संभाल इसे, बच्चों की जान नहीं लेता मैं। फातिमा घसीट कर कमरे में ले जाते हुए बोला, जबकि इब्राहिम जबरदस्ती यारम को कमरे की तरफ किसी खींच रहा था। अब्बा छोड़ दो मुझे, वो मेरी माँ को मार देगा, बचाओ अम्मी को। हम हर मुमकिन तरीके से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश यारम हर मुमकिन तरीके से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था जब उसकी माँ की चीखें बुलंद होने लगी। वो जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी, जबकि वो शैतान असगर उस पे हंसे जा रहा था। इब्राहिम इसे घसीटते हुए कमरे में ले आया। जब यारम दरवाजे को पकड़कर चाबियों का गुच्छा उतारा, जिसके साथ एक छोटा सा चाकू की चेन की तरह तौर पर लटका था। चीखें बुलंद होने लगी। इसकी माँ ऊंची आवाज में रो रही थी और इसके बाप को मदद के लिए पुकार रही थी। जब यारम ने की चेन से चाकू निकालकर अपने ही बाप के पेट में घोंप दिया और फिर मुसलसल मारता रह गया, ये कि हत्ता के चाकू का छोटा सा टुकड़ा टूटकर उसके हाथ में आ गिरा। बाहर से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर असगर को घबराकर बाहर निकला और वहां इब्राहिम को जमीन पर तड़पते देखकर बुखला गया। फातिमा जल्दी से उसके पीछे आकर इब्राहिम को देखने लगी। इस बच्चे ने कत्ल कर दिया, इससे पहले पुलिस यहाँ पर आ जाए, निकलो यहाँ से। असगर जल्दी से बाहर खड़े अपने आदमी को हुक्म देता भाग गया। यारम, तो जा, तू जा यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंच जाए, भाग जा यहाँ से। यारम को समझाते हुए बोली, जबकि आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसका शोर हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था, जिसने उसे कभी कोई अच्छी याद तो ना दी थी, बल्कि उसे बेचकर उसकी जिंदगी के स्याह सफात पर अपना नाम लिख दिया था। नहीं अम्मी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बेशक पुलिस आकर मुझे पकड़ कर ले जाए। यारम अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए बोला, लेकिन उसे अपने बाप के मरने का कोई दुख ना था। नहीं यारम, तुझे यहाँ से जाना होगा, तुझे अपनी माँ की बात माननी होगी। जो अपनी माँ का बच्चा है ना, जा, चला जा यहाँ से, मैं संभाल लूंगी। वो इसे अपने पास रखे कुछ पैसे यारम के हाथ की मुट्ठी में दबाती उसे जबरदस्ती बाहर की तरफ भेजने लगी, जबकि दूर से उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी। वो यारम के चेहरे पर जा बजा प्यार करती से बाहर भी भेज चुकी थी। पुलिस को खबर यकीनन असगर ने दी थी। उसे अपने शोहर की मौत का दुख था, लेकिन वो अपने बच्चे को यह सजा सारी जिंदगी मरते नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने अपने शोहर की मौत के इल्जाम अपने सर ले लिया। ये कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया गया था। उसके लिए फातिमा को कम सजा दी गई। 7 साल बाद जब वो जेल से वापस आई, सबसे पहले यारम उससे मिलने आया था, लेकिन जब यारम ने इसे ये बताया कि वो क्या काम करता है, तो इसे बहुत अफसोस हुआ।
وہ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے جیل گئی تھی۔ اس کے بیٹے نے کیا کیا، اپنے ہی راہ میں اپنے ہاتھوں سے کانٹے بھر لیے۔ فاطمہ نے اسے واپس بھیج دیا اور کہا کہ وہ اب اس کی کبھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، جبکہ وہ یہ سب کچھ اور کر نہیں کسی کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، جب تک وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر نہیں آتا۔ اور پھر یارم کبھی واپس نہ آیا۔ وہ اپنی ماں کو بہت سارے پیسے بھیجتا جسے وہ ایک الماری میں بند رکھتی۔ اس نے کبھی یارم کی رقم خرچ نہیں کی تھی۔ وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پڑھاتی اور اپنا گزارا کرتی۔ آج اتنے سالوں کے بعد وہ اپنی پہلی کی زندگی سوچتے ہوئے یارم کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ آج اسے یارم سے کوئی گلہ نہ تھا۔ اتنے سالوں کے بعد اپنا بچھڑا بیٹا دیکھ کر اس کی ممتا جاگ اٹھی تھی، جو اتنے سالوں سے اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یارم کا کمرہ آج بھی ویسا تھا۔ وہ ہر روز اس کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ وہ تو انہیں بتانے والا تھا روح کے بارے میں، لیکن روح نے انہیں اس طرح سے روتے دیکھ کر یارم کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ روح کا اشارہ سمجھ کر اس نے وقتی طور پر انہیں کچھ بھی نہ بتایا تھا، لیکن روح نے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ روح نے تو اس سے اور بھی بہت کچھ چھپایا تھا، لیکن فی الحال تو یہ لمحات جی رہا تھا جس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ اسے سوتا دیکھ کر فاطمہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی، جب انہیں اچانک ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یارم نے پوچھا۔ تو جاگ رہا ہے؟ مجھے لگا تو سو گیا۔ وہ لڑکیاں ہیں، یہ اکیلے کمرے میں ڈر جائیں گی، اس لیے جا رہی تھی ان کے پاس۔ تو اب آرام کر، صبح بہت ساری باتیں کریں گے۔ وہ پیار سے اس کا ماتھا چومتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ روح، فاطمہ بی بی کا بیٹا کتنا پیارا ہے نا؟ میں نے تو آج تک اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ فاطمہ بی بی بھی تو بہت خوبصورت ہے۔ تو سن رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تانیہ کو جواب نہ ملا تو وہ روح سے پوچھنے لگی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، روح منمنائی۔ تو کچھ مت سوچ، تو شادی شدہ ہے، اس کے بارے میں مجھے سوچنے دے۔ تانیہ نے شرارت سے مسکرا کر کہا تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ گھور مت یار، اتنا خوبصورت ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی سوچ سکتا ہے۔ ابھی تک یارم کے سحر میں کھوئی تھی، جبکہ روح کو یارم کے بارے میں تانیہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ ابھی اسے یارم سے اکیلے میں بات کرنی تھی، کیونکہ یہ تب کی بات تھی کہ وہ اس کے لیے یہاں آیا تھا۔ لیکن فاطمہ بی بی سے چھپ کر وہ اس سے کیسے بات کرے گی؟ یا ہو سکتا ہے یارم ان کو سب کچھ بتا چکا ہو، لیکن فاطمہ بی بی کو کتنا برا لگتا ہے یہ سوچ کر کہ جس بیٹے سے وہ اتنے سالوں کے بعد ملی ہے وہ ان کے بغیر ہی شادی کر چکا ہے۔ فی الحال بس وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے یارم سے بات کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی کمرے میں آ کر لیٹ گئی، جبکہ وہ انتظار کرنے لگی کہ کب وہ سو جائے اور وہ یارم کے کمرے میں اس سے بات کرنے جائے۔ اور یارم کو یقین تھا کہ وہ آج رات اس سے ملنے ضرور آئے گی اور وہ اس سے اگلے پچھلے تمام حساب بے باک کرے گا۔ یارم اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا دروازہ بجا۔ سو محترمہ تشریف لے ہی آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا، دروازہ کھولا تو سامنے اپنے آپ کو شال سے کور کیے کھڑی تھی۔ یارم، آپ فاطمہ بی بی کے؟ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یارم نے اسے کمر سے کھینچ کر کمرے کے اندر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب بولو کیا بولنا ہے؟ بلکہ روح کو تم چپ رہو میں بولتا ہوں۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ہی نہیں بولتے، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، اور پھر اس کے لبوں سے گردن تک کا فاصلہ طے کرنے میں اس نے چند سیکنڈ لگائے تھے۔ یارم میری بات، کوئی بات نہیں سننی میں نے تمہاری، تم سنو میری بات۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے، ہر بات کا حساب چکا میری ہر رات کا حساب دو۔ سوچنا بھی مت کہ آج کی رات تم مجھ سے دور رہو گی، میرے پاس رہو گی، آج ہر دوری مٹے گی۔ روح بی بی، اپنی ہر سانس کی تڑپ کا حساب لوں گا، لیکن سب سے پہلے تو تم مجھے اس بات کا حساب دو گی کہ تم مجھ سے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی؟ بہت ناراض ہوں تم سے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا روح؟ کیوں چھپائی مجھ سے اتنی بڑی بات؟ میں باپ بننے والا ہوں، تم جانتی ہو نا کتنی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا میں اس خبر کا، اور تم مجھے بنا بتائے یہاں آ گئی۔ روح یارم کے چہرے کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم ابھی تک اس سے اپنے شکوے کر رہا تھا۔ روح، اس طرح سے چپ رہنے سے تم بچ نہیں جاؤ گی، بتاؤ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اتنی بڑی خوشخبری کیوں چھپائی؟ تم نے مجھ سے، میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، لیکن یہ غلطی معاف نہیں کروں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ تو ابھی تک شاکڈ میں تھی، جبکہ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اب یارم بھی پریشان ہو چکا تھا۔ روح، تم ٹھیک تو ہو؟ یارم نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ماں بننے والی ہوں؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا میں سچ میں پریگننٹ ہوں؟ وہ حیرانگی سے یارم کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم اس کی اس طرح سے انجان ہونے پر کھل اٹھا۔
तुम्हें नहीं पता था? वो उससे पूछने लगा। नहीं, आपको कैसे पता चला? यारम, आपको किसने बताया? शर्म के मारे रूह से नजरें तक नहीं उठाई जा रही थी। वो अभी तक शॉक्ड की कैफियत में उससे पूछ रही थी जब यारम ने उसका शर्माया हुआ रूप देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। रूह, हम माँ बाप बनने वाले हैं, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इसमें मुस्कुराते हुए रूह के माथे पर अपने लब रखे। यारम, अब मुझे चलना चाहिए, कोई देख लेगा। रूह ने उससे अलग होते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ लेटो आराम से। आज की रात मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ गुजारूंगा। उसने रूह की कोई दूसरी बात सुने बगैर बेड पर अपनी जगह बनाते हुए उसका सर अपने सीने पर रख दिया। तुमने अम्मी को मुझे ये बताने के लिए क्यों मना किया कि तुम मेरी बीवी हो? वो यारम के सीने पर सर रखे लेटी थी। जब यारम ने पूछा, यारम, आप फातिमा बीबी की इकलौते बेटे हैं। न जाने कितने ख्वाब देखे होंगे उन्होंने आपकी शादी के लिए, न जाने क्या क्या सोच रखा होगा। और अब अगर आप अचानक इन्हें ये कहेंगे कि मैं आपकी बीवी हूं तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी मुझे इनसे अजीब से शर्म आने लगती है। मैं फातिमा बीबी की बहू हूँ। रूह मुस्कुराई और उसके अंदाज पर वो भी बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये बात फिलहाल इन्हें नहीं बतानी चाहिए। हम बाद में इन्हें अपनी शादी के बारे में बताएंगे। रूह ने आहिस्ता से कहा। और वो मेरी माँ है, आज नहीं तो कल तो ये बात उन्हें पता चलनी ही है। तो क्या फर्क पड़ता है? बाद में भी तो इन्हें ये बात जानकर दुख होगा ना। और वैसे भी इन्होंने खुद मुझे अपने आप से अलग किया था। इन्होंने आपको खुद से अलग किया तो आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए। आप इन्हें बाद में ये बात और हालात बताएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हम ठीक से नहीं समझाएंगे, मैं खुद उन्हें बता दूंगी। और तुम इन्हें ये बात कब बताओगी रूह? मैं यहाँ तुम्हें लेने आया था और ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे साथ कभी नहीं आयोगी। यारम के लहजे में उदासी थी। बता दूंगी यारम, ठीक है, कल ही बता देना। मैं नहीं चाहता कि तुम इतने दिन मुझसे दूर रहो। यारम, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, ये ना हो कि तानिया आप ही जाग जाए। रूह उठने लगी जब यारम ने उसे अपने करीब कर लिया। इतने दिनों के बाद मिली हो और दूर जाने की बातें कर रही हो, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? वो एक ही झटके में उसे अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर झुका था। यारम, फातिमा बीबी आ जाएंगी। रूह की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी जब यारम ने उसके लबों पर अपने होंठ रख दिए। शायद वो आज उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। यारम, तानिया आपी। रूह, तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। किसी और के साथ नहीं हूँ, अपनी शोहर के साथ हो तुम। कोई आ जाएगा, उठ जाएंगे, उठे सोए, आई डोंट केयर। मैं बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। और तुमने मेरे साथ किया है ना, उसकी बहुत बड़ी सजा देनी चाहिए। उसकी बहुत बुरी सजा देनी चाहिए मुझे तुम्हें। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, सारे हिसाब लूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल तंग मत करो। अच्छे बच्चों की तरह अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरे काम करने दो। वरना मैं अभी अम्मी को जाके बता दूंगा कि तुम मेरी बीवी और हमेशा के लिए ले आऊंगा। यारम कहते हुए फिर से उसके लबों पे झुक गया और इस बार रूह ने कोई मुजाहमत ना की, क्योंकि वो जानती थी कि ये आदमी जो कहता है वो करता है। यारम, अब मुझे जाना चाहिए। थोड़ी देर में अजान शुरू हो जाएगी, फातिमा बीबी जाग जाएंगी। रूह ने उसके करीब से उठने की एक और नाकाम सी कोशिश की जब यारम ने उसे फिर से तक पकड़ कर अपने करीब कर दिया। चली जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक शर्त है। आज इस नए साल की पहली सुबह मैं तुमसे इस नए साल का तोहफा मांगता हूँ। यारम ने उसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए कहा। मैं आपको तोहफा दे चुकी हूँ, अब आप मजीद मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। रूह उसका इशारा समझकर घबरा कर बोली। लेकिन वो तोहफा तो मैंने दिया है, तुम्हारी बारी तो अब आई है। वो कहते हुए एक बार फिर से इस पर झुका था। नहीं यारम, प्लीज जाने दें। वो जानती थी यहाँ सब मुजाहमतें बेकार हैं, फिर भी नाकाम सी कोशिश करने लगी। जबकि यारम उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए अपने काम में मगन था। जब अजान शुरू हो गई, यारम छोड़ दे मुझे, वो उसे पीछे धकेल कर बाहर भागी थी। जबकि यारम उसकी स्पीड देखकर हंसने लगा। उसकी बात ठीक थी। अगर यारम अचानक अपनी माँ को ये कहता कि वो शादी करके आया है तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन रूह को इससे शर्म क्यों आ रही थी? मोहतरमा के लॉजिक ही अजीब है। वो मुस्कुराते हुए दोबारा लेट गया। तुम पास नहीं होती तब भी नींद हराम होती है, तुम पास होती हो तब भी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। रूह बेबी, क्यों मेरी नींद की दुश्मन बनी हुई हो? वो एक भरपूर अंगड़ाई लेकर अपने ऊपर कंबल डालने लगा। जब नजर इस जगह गई जहां अभी थोड़ी देर पहले रूह उसके साथ थी, वो बेसाख्ता मुस्कुराया। बहुत जालिम हो यार। वो इस जगह पर हाथ फेरता फिर से सोने की कोशिश करने लगा। वो जल्दी से कमरे में आई और अपनी जगह पर लेट गई। जबकि तकरीबन 2 मिनट बाद ही फातिमा बीबी ने उसे पुकारना शुरू किया। रूह उठ, नमाज पढ़ ले। उसके कहने की देर थी कि वो उठकर बैठ गई। अरे, ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? मैंने तो आते हुए बंद किया था। फातिमा बीबी सोचते हुए उठी। वो मैं पानी लेने गई थी। रूह ने फौरन झूठ बोला। फातिमा बीबी, हाँ
हाँ, मैं सर हिलाती उठकर वॉशरूम चली गई। अल्लाह पूछे आपको 11 साल की पहली सुबह ही मुझसे झूठ बुलवाया, पूरे साल ही झूठ बोलती रहूँगी। वो 11 को कोसती उठकर फ्रेश होने चली गई। क्या हुआ रू, तुझे नींद आ रही है? रात को ठीक से नहीं सोई क्या? फातिमा बीबी ने उसे सुस्त देखकर पूछा। आपको क्या बताती कि इनके बेटे ने सारी रात उसे एक पल को भी ना सोने दिया? नहीं फातिमा बीबी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो ठीक नहीं लग रही। आज रिपोर्ट लेने हम डॉक्टर के पास जाएगी ना तो वहां से अपना चेकअप भी करवा लेना। हो सकता है कोई खुशखबरी ही हो। फातिमा बीवी ने प्यार से उसकी गाल को छुआ। खुशखबरी क्या है, मुझे पता है, रू ने शर्माते हुए कहा। तो फातिमा बीवी खुशी से खिल उठी। क्या सच? तुझे कैसे पता चला? फातिमा बीवी ने पूछा। तो वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी। जब यारम ने पीछे से ने पुकारा, अम्मी कुछ बना दें, बहुत भूख लगी है। वो लाड़ से उनके गले में बाहें डालकर बोला, मेरा बच्चा अभी बनाती हूँ, बल्कि रू तुझे पराठा बना के देगी, बहुत अच्छा खाना बनाती है। फातिमा बीवी ने तारीफ की। अरे अम्मी, इसका तो मैं खाता रहता हूँ, आपका बहुत अरसे से नहीं खाया। यारम बेसाख्ता बोला तो रूह से घूरने लगी, जबकि फातिमा बीबी हैरान और परेशान नजरों से देख रही थी। मेरा मतलब है मुझे मेरी अम्मी के हाथ का पराठा खाना है और किसी के हाथ का नहीं। यारम ने बात बदली। फातिमा बीबी मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, जब तक तुम और तानिया जाओ और रिपोर्ट ले आओ। फातिमा बीबी ने कहा। बल्कि ऐसा करो, थोड़ी देर रुक जाओ, यारम खाना खा ले, फिर तुम दोनों को अपने साथ ले जाएगा। कहाँ बाजार में ख्वार होती फिरोगी, माहौल नहीं है लड़कियों को अकेले भेजने वाला। फातिमा बीबी यारम को कहती किचन में जा चुकी थी, जबकि रूह नजरें जमीन पर गाड़े न जाने क्या सोच रही थी। जब अपने गालों पर नरम लम्स महसूस हुआ, रूह ने चौंक कर उसे देखा। यारम क्या कर रहे हैं आप? रूह आगे पीछे देखती एक झटके से पीछे हुई। मैंने क्या किया? यारम ने मासूमियत से कहा। यारम आप ना आपको बनाई मासूमियत सूट नहीं करती, तो ड्रामे मत किया करें। वो उंगली दिखाकर बोली। जब यारम ने वही उंगली पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचीटा और अपना निशाना उसके होंठ से उसके लबों पर भरपूर मोहर सख्त करके अब आप 2 कदम के फासले पर खड़ा हुआ था। अगर मासूमियत सूट नहीं करती तो दिखानी भी नहीं चाहिए। मुझ पर सिर्फ रोमांस सूट करता है, यही कहना चाहती थी ना तुम? वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। जब फातिमा बीबी की आवाज़ आई, आजा यारम, पराठा बन गया। फातिमा बीबी की हुई आवाज़ पर वो हंसते हुए किचन में चला गया, जबकि रूह नींद से बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह पूछे आपको यारम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे आप मेरे साथ। अम्मी, मैं आपसे कहना चाहता था कि इस दूसरी लड़की को मेरे साथ भेजने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ रूह को ही भेजे ना। वो बड़े मज़े से इन्हीं के हाथों से पराठा खाते हुए बोला। क्यों, रूह भी तो एक लड़की है, इसे मैं तेरे साथ इस तरह से क्यों भेजूं? वैसे घूर कर पूछने लगी। अम्मी, अगर आपको ये लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपको ये पता है कि रू मेरी बीवी है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। यारम ने भरपूर अपने डिंपल्स की नुमाइश करते हुए कहा। अच्छा, तो तुझे सब पता है? इस पर फातिमा बीबी भी मुस्कुराई थी। जी हाँ, मुझे सब पता है। आपको क्या लगता है वो आप ऐसे ही किसी लड़की को बाहर इतनी देर अपने बेटे के पास खड़ा कर देंगी? और मुझे ये भी पता है कि आप आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ये बात जानती हैं। मैं आपको कल रात ही सब बताने वाला था, पर रू ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती ये बात आपको दुख पहुंचाए। उसे लगता है कि मेरी शादी के बारे में सुनकर आपको बुरा लगेगा। और मैं जानता हूँ कि आप इस दिन से सब जानती हैं, जिस दिन हमने पहली बार फ़ोन पे बात की थी। रूह का आपका नाम लेकर पुकारना ही मुझे शक में डाल गया था, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा देर ये बात नहीं छुपा सकता था। वो भी जब जब मैं जानता हूँ कि आप सब जानती हैं। यारम ने उनका हाथ चूमा। वो लड़की बचपन से जानती है मेरी हर बात। वो अपना सारा वक्त मेरे साथ गुजारती थी। मैं अक्सर उसे बताती थी कि मेरा बेटा आएगा, उसकी शादी करूंगी। कुछ ख्वाब थे जो मैंने सजाए थे तेरी शादी के लिए, इसलिए रूह को लगा कि मुझे बुरा लगेगा तेरी शादी का सुन के। लेकिन सच तो यह है कि तेरी शादी का रूह के साथ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो क्या सच में तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर पूछा तो यारम ने हाँ में सर हिलाया। मैं दादी बनने वाली हूँ। फातिमा बीबी की खुशी की कोई इंतहा ना थी, जबकि यारम इनकी खुशी देखकर बहुत खुश था। अब तो सारे गलत काम छोड़ दे, सिर्फ अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोच। फातिमा बीबी के कहने की देर थी, यारम का मूड फिर से ऑफ हो गया। अम्मी, आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी इस तरह से क्यों कहती हैं? मैं ये काम नहीं छोड़ सकता और ना ही कभी छोड़ने का इरादा रखता हूँ। वो बस इतना कहकर उठकर कमरे में चला गया, जबकि फातिमा बीबी आज भी उसे इस रास्ते से हटा नहीं पाई थी जिस रास्ते वो 12 साल की उम्र से चला था। यारम जी, दुबई तो हमारे मुल्क से बहुत अलग होता होगा ना? वैसे हमारी रूह भी 5 महीने दुबई में रह के आई है, लेकिन वो दुबई के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करती। वो कहती है कि पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप तो इतने सालों से दुबई में थे, तो बताएं ना दुबई आपको कैसा लगता है?
तानिया उसके सामने बैठी दुबई की बातें कर रही थी, जबकि रूह बार-बार दरवाज़े से झाँक कर ये देखने की कोशिश कर रही थी, आखिर तानिया उसके शौहर से क्या बात कर रही है। जबकि कल रात तानिया की यारम की खूबसूरती पर तबसरा उसे पसंद ना आया था। तानिया उसे बाहर खड़े देखकर दाँत पीसते हुए बाहर आई। "क्या मसला है? तुझे कोई काम कर, मुझे इनसे बातें करने दे। क्या पता तेरे साथ-साथ मैं भी दुबई चली जाऊँ।" तानिया ने उसे कहा जाने को कहा। "हाँ, आप कैसे चलेंगी तानिया बाजी?" रूथ हैरान होकर इससे पूछा। आखिर उसके इरादे क्या थे? "अरे बेवकूफ़ लड़की, जिसे मैंने दिल दिया वो तो बेगैरत मुझे छोड़कर चला गया। अब अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे कुछ तो सोचना है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इन पर ट्राई करूँ। वैसे भी माशाल्लाह हैं, इतनी खूबसूरत है कि हमारा तो पूरा ख़ानदान जल कर राख हो जाए। अब अगर मेरी शादी इनके साथ हो गई तो हम दोनों दुबई जाएँगे। तो अपने शौहर के साथ, मैं अपनी यारम जी के साथ। तू अपना काम कर, मैं ट्राई मारती हूँ।" तानिया ने इसे पूरी बात समझाकर वहाँ से जाने का इशारा किया, जबकि यारम के पतले कान उसका सारा प्लान सुन चुके थे और रूह का चेहरा देखकर यारम का दिल चाह के कहका लगाकर हंसे, लेकिन अपना कहका कंट्रोल करने में उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। "तानिया जी, मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर मुझे कंपनी दें ना," यारम ने तानिया के पीछे से आकर कहा। "रूह जी, तब तक एक कप चाय बना दीजिए," यारम ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसे ऑर्डर दिया, जबकि तानिया उसके साथ आकर वापस बैठ गई और रूह उसकी शक्ल देखते हुए बाहर चली गई। "जनाब को चाय चाहिए और कंपनी चाहिए," तानिया बाजी की। वो एक-एक बर्तन पटकती अपना रोना रो रही थी, जबकि फातिमा बीबी कब उसके पीछे आकर खड़ी उसे पता भी ना चला। "रूह, क्या कर रही है? बेटा, बर्तन टूट जाएंगे," वो अपनी हंसी छुपाए पूछने लगी। "कुछ नहीं फातिमा बीबी, चाय बना रही हूँ आपके बेटे के लिए," वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली। जब देखते ही देखते रूह ने पत्ती के 2 नहीं बल्कि 4-5 चम्मच भर कर डाल दिए। "रूह बेटा, ये क्या कर रही है? इतनी कड़वी चाय किसके लिए बना रही है?" फातिमा बीबी परेशानी से आगे बढ़कर उससे पूछने लगी। "फातिमा बीबी, इनके सर में दर्द है, इसलिए कड़वी चाय पीने पीने से जल्दी आराम आएगा। फिर हमने जाना भी तो है आपकी रिपोर्ट्स लेने।" रूह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए चाय की पत्ती वाला डब्बा बंद करने लगी, जबकि फातिमा बीबी अपने बेटे की शरारत पर इसको मिलने वाली सज़ा के बारे में सोचकर बहुत खुश थी। "जाएँ फातिमा बीबी, ये चाय अपने बेटे को दे आएँ," उसने ट्रे इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। "तूने बनाई है तो तू ही दे के आ।" फातिमा बीबी मुस्कुराते हुए सब्ज़ी काटने लगी और रूह ट्रे उठाकर बाहर निकल आई। अभी रूह ने कमरे में कदम रखा ही था जब फातिमा बीबी ने तानिया को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। वो उठकर बाहर चली गई। यारम की ज़बान का ज़ायका तो चाय का पहला सिप लेते ही बहुत ख़राब हो चुका था। "ये चाय बनाई है तुमने? ऐसी होती है चाय?" तानिया के जाते ही वो फट पड़ा। "हाँ, चाय बनाई है और ऐसी ही चाय बनानी आती है मुझे," वो भी कमर पे हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह बोली। जब यारम ने उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब किया। "बहुत ख़राब चाय बनानी आती है तुम्हें, लेकिन क्या है ना, मुझे इसका ज़ायका ठीक करना आता है," उसके लबों पर अंगूठा फेरते हुए बोला। "नहीं यारम, तानिया बाजी वापस आने वाली होंगी," वो फासला कायम करने की कोशिश करने लगी। जब यारम ने एक झटके से मज़ीद अपने करीब कर लिया। "तो मैं क्या करूँ? तुमने मुझे इतनी कड़वी चाय बनाकर दी और अब कुछ मीठा हो जाए।" "नहीं यारम," तानिया बाजी उसकी बात मुँह में ही रह गई। इसके अंदाज़ में शिद्दत देखकर रूह ने पीछे हटने की नाकाम कोशिश की। जब तानिया के कदमों की आवाज़ सुनकर यारम ने उसे खुद से दूर किया। "यारम जी, आपने चाय पी ली चलें? वो क्या है ना, रूह को भी हमने चेकअप करवाना है, वरना ये हमारे साथ नहीं आना चाहती थी," तानिया ने मुस्कुराते हुए बताया, जबकि वो ये भी नोट ना कर पाई कि उसके कुछ फासले पर खड़ी रूह अपनी हालत का नॉर्मल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि यारम आराम से बैठा चाय पी रहा था। "लगता है चाय बहुत अच्छी बनी है," तानिया ने मुस्कुराकर कहा था। यारम भी मुस्कुराया। "इससे ज़्यादा मज़ेदार चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। शायद आप बनाती तो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनती।" यारम ने चाय का आखिरी घूंट भरा और उसे जलाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि तानिया भी कमरे से बाहर निकल गई। "आप बनाती तो इससे भी अच्छी बनती," वो इसकी नकल उतारती पीछे आई। "यारम, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारा इतना बड़ा दुश्मन कौन है, जो तुम्हारा पूरा घर जला गया है। आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। एक बार मेरे हाथ लग जाए, वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो खुदा का शुक्र है कि तुम लोग यहाँ नहीं हो। वो आदमी तुमसे दुश्मनी लेकर तुम्हारे बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। इसे पता ही नहीं था कि तुम घर पर नहीं हो, या शायद वो आदमी जानता है कि तुम लोग यहाँ नहीं हो, लेकिन उसने फिर भी तुम्हारे घर पर हमला क्यों किया? तुम्हारे घर से क्या दुश्मनी है? अगर उसकी कोई दुश्मनी होगी तो तुमसे होगी। एक तो हमने इस मुल्क को भी मार दिया, हमारी टीम में को एक तो हमने इस मलिक को भी मार दिया।
हमारी टीम में कौन-कौन हमारे खिलाफ काम कर रहा है? हम अब कुछ नहीं जानते। खिज़र क्या हो गया है? इतनी परेशानी की बात नहीं है जितना तुम परेशान हो रहे हो। हाँ, उसने मेरा घर जला के गलत किया क्योंकि इस घर में मेरी बहुत सारी चीज़ें थीं, जिसका हिसाब उसे देना होगा। लेकिन रूह को इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बेकार में परेशान हो जाएगी। सिर्फ़ घर ही जला है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और वो जो भी आदमी है मुझसे दुश्मनी ले रहा है, वो ये तो जानता ही होगा कि मैं क्या हूँ। तुम फ़िक्र मत करो, मैं आकर सब कुछ सँभाल लूँगा। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अम्मी भी मेरे साथ आने के लिए मान जाएँ। जानते हो, मैं और अम्मी मिलकर रूह को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रूह को लगता है कि अम्मी को पता नहीं है कि रूह का शौहर उनका बेटा है। यारम ने अपने डिंपल की नुमाइश करते हुए बताया। मतलब फ़ातिमा बीबी जानती थी कि वो तुम हो? खिज़र ने हैरानगी से पूछा। खिज़र, मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरी माँ है। क्या वो मुझे फ़ोन पर पहचान नहीं सकेगी? फ़ोन रखता हूँ, मैं अम्मी की रिपोर्ट लाने डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। रूह भी मेरे साथ है और वो उसकी बहन भी। उसकी बहन से मुझे अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। यारम ने हँसते हुए कहा। फ़ायदा मतलब? खिज़र ने पूछा। फ़ायदा मतलब मैं उसकी बहन को लेकर इसको बहुत जला रहा हूँ। अगले पिछले हिसाब किताब निकाल रहा हूँ। अब उसने मुझे इतने दिन तंग किया है, थोड़ा तंग करना तो मेरा भी बनता है ना। चल बाद में बात करता हूँ। यारम ने हँसते हुए फ़ोन रखा। चलें तानिया जी, उसने रूह को इग्नोर करके तानिया से पूछा। जब तानिया उसकी गाड़ी की पिछली सीट खोलने लगी और रूह अगली। तानिया जी प्लीज़ आप आगे बैठिए ना, मुझे रास्ता ठीक से नहीं पता। और आपने ही तो बताया है कि रूह जी भी दुबई से आई हैं, तो इन्हें कहाँ रास्ता पता होगा। यारम के कहने की देर से तानिया तो खिल उठी और रूह को पीछे बैठने का इशारा किया। रूह ने एक ज़ोरदार धमाके से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और पिछली सीट खोलने लगी। जब यारम ने अपने हाथ में पकड़े कार रिमोट से गाड़ी लॉक कर दी। ये तो खुल ही नहीं रही, रूह ने गुस्से से देखकर कहा। यारब ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पे हाथ रख के गाड़ी खोली। इतनी आसानी से तो खुल गई। आ भी ना रूह जी, यारब ने उसके गाल पर मीठी सी जिसारत करते हुए कहा, जबकि उसी की खुलेआम इस हरकत पर रूह गुस्से और शर्म से सुर्ख हो गई। जबकि तानिया बेखबर आगे बैठी है, यारम के साथ बैठने की खुशी मना रही थी। क्यों ना पहले आइसक्रीम खा ली जाए? यारब ने सामने आइसक्रीम पार्लर देखते हुए कहा। रूह जो कब से इनकी बातों से इरिटेट हो रही थी, फ़ौरन इनकार करेगी। जी नहीं, हम जो काम करने आए हैं पहले वो कर लेते हैं। वो गुस्से से बोली। रूह जी, इंसान का मूड भी होता है कुछ करने का। हम वहीं जा रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स ही तो लानी है, ले आएंगे। पहले कुछ खा पी ले। क्यों तानिया जी? वो मुस्कुराते हुए तानिया से पूछने लगा। जी बिल्कुल यारम जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो कौन सा फ्लेवर खाएंगी आप? यारम ने एक बार फिर से मुस्कुरा कर देखा, जबकि तानिया को उसके डिम्पल में अपना दिल में डूबता हुआ महसूस हुआ। स्ट्रॉबेरी, वो शर्माते हुए बोली। क्या चॉइस है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह बहुत मीठी। यारम ने तो आज लाइन मारने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि रूह का दिल चाहा कि पूरी आइसक्रीम मशीन उठाकर उसके सर पर दे मारे। रूह जी, आप कौन सा फ्लेवर पसंद करेंगी? अब वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। जब रूह ने बहुत लाड से चॉकलेट कहा, जो कि यार जो कि यारम का फेवरेट फ्लेवर था। बहुत बोरिंग चॉइस है आपकी, मगर तानिया जी आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। हम दोनों स्ट्रॉबेरी खाएंगे। यारम के कहने की देर थी कि रूह की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो इस पर किसी और को फोकियत दे रहा था। वो अपने आंसू पीछे धकेलती गाड़ी से बाहर देखने लगी, जबकि यारम उसके आंसुओं का नोटिस लिए बगैर ही बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो आइसक्रीम लेकर वापस आया। अरे यारम जी, आप अपने लिए नहीं लाए? उसने रूह को और तानिया को आइसक्रीम दी तो तानिया ने पूछा। वो एक ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थी। यारम ने उदासी से बताया तो रूह खुश हो गई। यारम जी आप ये खा लें, तानिया ने फौरन ऑफर की। अब मैं अकेला खाता हूँ, अच्छा लगता हूँ। हम दोनों शेयर कर लेते हैं। वो मैंने सुना है कि शेयर करने से प्यार। यारम ने बात अधूरी छोड़ी तो रूह ने घूर कर उसे देखा, जबकि यारम की बात में तानिया का चेहरा एक बार फिर से गुलाब की तरह खिला दिया। फिर तानिया ने थोड़ी सी आइसक्रीम खाकर उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाई और उसका हाथ थाम के जब यारम ने आइसक्रीम का बाइट लिया, रूह के साथ उसका दिल भी कांपने लगा। अब मजीद देखना उसके बस से बाहर था और ना ही अब उसके आंसुओं ने कंट्रोल होना था। रूह तुम भी अपनी आइसक्रीम यारम जी के साथ शेयर करो ना। यारम जी ये चॉकलेट भी बहुत अच्छा होता है, आपको ट्राई करना चाहिए। तानिया ने जैसे उसकी मुश्किल आसान कर दी। रूह जी आप मेरे साथ अपनी आइसक्रीम शेयर नहीं करेंगी? यारम का तानिया के साथ आइसक्रीम शेयर करके खाने खाने से बिल्कुल पसंद ना आया था। उसका दिल चाहा एक सेकंड में उसका मुंह पर इनकार
दे मारे, लेकिन फिर उसे अचानक याद आ गया कि यारम उसका शौहर है, तानिया का नहीं। और फिर यारम ने उसका हाथ पकड़ के आइसक्रीम का बाइट लिया तो रूह का दिल खुश होने लगा। उसका मासूम चेहरा उसके दिल की खुशी बयान कर रहा था। यारम बेख्तियार उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। अभी 2 मिनट पहले वो कितनी उदास थी। यारम चाहे उससे अपना बदला ले, उससे हिसाब पूरे करे, लेकिन सच ये था कि उसके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता था। हद होगी, डॉक्टर को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? पाकिस्तान में सब लोग एक जैसे हैं, किसी को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं। दुबई में चल के देखो, एक दुकान बंद नहीं होगी और यहाँ पूरा बाज़ार बंद है। यारम की गलती इनकी नहीं, हमारी है। हमें घर से सोच समझ कर निकलना चाहिए था। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन क्लिनिक्स बंद होते हैं। तानिया ने उसका गुस्सा देखकर कहा। जब यारम का गुस्सा कंट्रोल ना हुआ तो रूह बोली, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जुमे की कदर की जाती है, आपके दुबई की तरह नहीं। कहने को तो वो भी एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन जुमे के दिन सारी दुकानें, क्या पूरा बाजार खुला होता है? रूह ने गुस्से से कहा। भांजी भी मामू के जैसे ही है, बोल के दिखाओ पाकिस्तान के खिलाफ। यारम की बुड़बुड़ाहट रूह ने सुन ली, लेकिन इग्नोर करके वो वापस गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। कोई बात नहीं, आराम कोई बात नहीं यारम, फिर चले जाना, फातिमा बीबी ने उससे कहा, जबकि घर आने के बाद रूह ने अपनी शक्ल ना दिखाई थी। शायद उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही जला दिया। हाँ ठीक है, हम सुबह दोबारा जाएंगे, वो तानिया को साथ नहीं भेजना, यारम ने फातिमा बीबी से कहा। और मैं रूह से क्या कहूँगी कि मैं इसे किसी गैर मर्द के साथ क्यों भेज रही हूँ? हद हो गई है, कुछ भी कह दीजिएगा, मुझे परवाह नहीं। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, कल मैं और रूह जाएंगे। यारम बस इतना कहकर चला गया, जबकि फातिमा बीबी अपने जिद्दी बेटे को देख रही थी। बेटा माँ को फंसा के खुद निकल गया है। रूह भी चाहे उसे तंग भी करना है रूह भी चाहिए और उसे तंग भी करना है। या अल्लाह, क्या सोच के इसके दिल में रूह के लिए मोहब्बत डाली। वो मुस्कुराते हुए अल्लाह से पूछती फिर किचन में आ गई। फिर इन्होंने यारम की पसंद की कोई चीज़ बनानी थी। देखा कैसे फातिमा बीबी ने हमें नीचा दिखाने के लिए तानिया को अपने घर में रख लिया। अम्मी आप नहीं समझती, पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। उनके घर में जवान जहान आदमी आया है और वो दोनों रूह तो शादीशुदा और वो दोनों चलो रूह तो शादीशुदा है, लेकिन ताने की वजह से पूरा मोहल्ला बातें सुना रहा है। आप तो घर से निकलती नहीं है, क्या आपको क्या पता चले? मारिया रोज की तरह आज भी बातें सुनाती कमरे में चली गई, जबकि वो सोच रही थी कि एक बेटी की शादी रूह के भेजे हुए पैसों से कर दी। इस हराम के पैसे की वजह से आज भी इनकी बेटी सुख में नहीं। तानिया घर से भाग गई और मारिया की लड़कों के साथ दोस्ती, इन बेटियों के लिए इसने रूह को भेज दिया था। और इस 18 साल पहले इस मासूम लड़के के साथ क्या क्या न किया। आज उसे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा था। अगर फातिमा बीबी की तरह ही काबिल माँ बनती तो आज ही उसे अपनी औलाद की बदतमीजियां न सहनी पड़ती, रात उसके सामने ना आती। अब उसे बेचैनी होने लगी थी। ये तो पक्की बात है, रूह उससे नाराज है, लेकिन वो उसके सामने क्यों नहीं आ रही? 3 बार वो उसके कमरे तक गया, लेकिन वो सामने आने का नाम तक नहीं ले रही थी। वो तो खाना खाने के लिए भी बाहर ना आई। अब यारम की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसे तो फातिमा बीबी से भी अच्छी खासी शिकायतें कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सो चुकी है। ऐसे कैसे सो गई? अभी तो मैंने बात भी नहीं की उससे। बिल्कुल ठीक नहीं कर रही आपकी बहू मेरे साथ, वो गुस्से से कहता उनकी गोद में लेट गया, जबकि वो इनकी बेचैनी पर हंसते हुए उसके सर में हाथ फेरने लगी। खुद से तंग करता है फिर खुद ही उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फातिमा बीबी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद फातिमा बीबी अपने कमरे में चली गई, जबकि यारम को नींद न आई। रात के तकरीबन 1 बजे वो इनके कमरे में आया, बिना आवाज़ पैदा किए आराम से रूह को उठा के अपने कमरे में ले आया। उसने ये सब कुछ इतनी नामहसूस अंदाज में किया कि रूह जागी तक नहीं। यारम ने उसे आहिस्ता से लाकर बेड पर लेटाया और प्यार से उसके लबों को छुआ और दूसरी तरफ आकर खुद लेट गया। उसे देखते देखते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। रूह की आंख खुली तो अपने आप को ख्वाब में समझकर मुस्कुराते हुए यारम के गाल पे हाथ रखा, लेकिन चारों तरफ गूंजती अजान की आवाज ने उसे एहसास दिलाया कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि यारम सच में उसके साथ है। मैं फातिमा बीबी के साथ उनके कमरे में थी तो यहाँ कैसे आई? अपने आप को यारम के हिसार में कैद पाकर फटाफट उसने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन यारम नींद में भी उसे रिहाई देने को तैयार ना था। यारम छोड़े मुझे, मैं यहाँ कैसे आई? यारम छोड़े मुझे। वो उड़ते हुए यारम का हिसार तोड़ने की कोशिश में थी, लेकिन यारम था जो उसे मजीद अपने आप में भींचे जा रहा था। यारम, आप मुझे छोड़ रहे हैं या क्या कर लोगी तुम? अब वो बुरा अब वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा, यानी वो कब से जाकर उसे सताने में लगा था और रूह को लगा कि वो नींद में उसे तंग कर रहा है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो गुस्से से पूछने लगी। मुझे मेरी बीवी के बगैर नींद नहीं आती।
جو آپ کے ساتھ ہی وہ اسے ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگانے لگا۔ میرے بغیر نیند نہیں آتی، یا تانیہ باجی کے بغیر؟ ہاں، دیکھے تھے کل کیسے چپ کر رہے تھے، پتہ نہیں کیسے باتیں کر رہے تھے، دونوں ایک ساتھ آئس کریم کھا رہے تھے، وہ بھی شیئر کر کے۔ اب بھی جائیں نا انہیں کے پاس، انہیں اٹھا کے لانا تھا یہاں، مجھے کیوں لائے؟ روح بناتے ہوئے بولی۔ یار وہ میری بیوی تھوڑی ہے جو میں اسے اٹھا لاؤں گا، اب اس کے لیے ویٹ کرنا ہوگا، فی الحال تمہارے ساتھ ہی گزارا کروں گا۔ اس کی آدھی بات پر وہ خوش ہو گئی، لیکن اگلی ہی بات پر اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارنے لگی، جو یارم ہنستے ہوئے بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ جب یارم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف سرہانے سے لگائے اور آپ نے بات کی صفائی دی ہے بغیر اس کی گردن پر جھکا، اور اپنی بات کی صفائی دیے بغیر اس کی گردن پر جھکا، جبکہ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر ہی روح گھبرا کر بات بدلنے لگی۔ یارم آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فاطمہ بی بی آپ کی ماں ہے؟ وہ اس میں مکمل بہہ کے جا رہا تھا جب روح بولی، تم نے موقع ہی کب دیا جب ساری سچائی تم پہ کھلی؟ میں شیخ نہیں بلکہ یارم ہوں، تب تم مجھے چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ اچھا یارم اب چھوڑ دینا، فاطمہ بی بی ابھی نماز کے لیے جاگ جائیں گی، اگر انہوں نے مجھے وہاں نہ دیکھا تو ڈھونڈنے لگیں گی، اور اگر کوئی یہاں آ گئی تو پلیز جانے دیں مجھے۔ روح نے بہت محبت سے کہا، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن آج رات تم یہاں میرے ساتھ گزارو گی، اور اب میں کوئی بہانہ نہیں سننا چاہتا، کیونکہ اگر تم نہیں آئی تو میں تمہاری تانیہ باجی کو بلا لوں گا۔ یارم نے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے دھمکی دی۔ یارم وہ غصے سے بس اتنا ہی بول پائی تھی، چلو جاؤ ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ یارم نے اسے آزادی دیتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی جلن پر وہ کھل کر ہنسا۔ تمہاری ہر ادا جان لیوا ہے۔ روح نے بہت محبت سے یارم کے لیے ناشتہ بنایا، لیکن اس کا دھیان تانیہ کے بنائے ہوئے ناشتے پر تھا۔ یہ کس کے لیے اتنی محبت کر رہی تھی؟ لیکن پتہ چلا جب وہ ٹرے میں سجاتی یارم کے کمرے میں لے گئی، وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ یارم جی آج صبح صبح میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے، وہ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تھینک یو سو مچ تانیہ جی، آپ کو میرا کتنا خیال ہے؟ روح کو پیچھے دیکھ کر یارم نے فوراً کہا، جب روح بنا کچھ بولے پلٹ کر جانے لگی، لیکن میں تو انڈے نہیں کھاتا، یارم نے فوراً کہا، تو روح خوشی سے فوراً پلٹی، میں نے چھولے پوری بنائی ہے۔ آواز میں اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ یارم کے انکار کرنے کی کوئی چانس ہی نہ تھے۔ کیوں نہیں، آج دہی کھا لیں گے، یارم نے کہا تو وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ یہ کیا یارم بھائی، آپ نے تو کہا تھا کہ روح کو جلانا ہے۔ تانیہ نے بد مزہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ بس بہت ہو گیا تانیہ، اب نہیں، اب میں اسے اداس نہیں دیکھ سکتا، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ مسکرا دی۔ ہائے آپ کتنا پیار کرتے ہیں اس سے، تانیہ نے خوشی سے کہا، تو یارم بھی مسکرا دیا، میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ روح تانیہ نے مشین لگا لی ہے، تم یارم کے ساتھ ڈاکٹر سے رپورٹ لے آؤ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکرائی۔ ٹھیک ہے فاطمہ بی بی، میں چلی جاؤں گی، میں تیار ہوتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی کمرے میں چلی گئی، شکر ہے تانیہ باجی ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ وہ کافی اچھے سے تیار ہوئی، آخر یارم کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی، یارم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے آتا دیکھ کر مسکرایا، اس کی ماں نے اس کی بات مان لی تھی، اس کی خوشی بتا رہی تھی کہ یارم کے ساتھ آ کر وہ بہت خوش ہے۔ یارم اس کے ساتھ بہت خوش تھا، اس کا فی الحال اسپتال جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ واپسی بھی اسپتال جانے والا تھا، فی الحال وہ لوگوں کے ساتھ انجوائے کرنے والا تھا۔ یارم جلدی گھر چلتے ہیں نا، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے یار کہہ دیں گے ٹریفک بہت ہے، ویسے بھی پاکستان میں ٹریفک بہت ہے۔ یارم ایک بار پھر سے پاکستان کو بیچ میں لے آیا، تو روح نے گھر کر اسے دیکھا۔ سوری میں بھول گیا تھا، تمہارے پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا۔ یارم نے اس کا موڈ آف دیکھ کر فوراً سوری کہہ دیا۔ یارم میں آپ سے ایک بات کہوں، مانیں گے؟ روح اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، میری جان جو کہے گی میں سب مانوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، جب روح نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے سر پر رکھا، یارم قسم کھائیں کہ آج کے بعد آپ کسی کی جان نہیں لیں گے۔ وہ اتنی یقین سے اسے کہہ رہی تھی، یارم چاہ کر بھی انکار نہ کر پایا۔ روح میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس نے یقین دلانا چاہا۔ میں جانتی ہوں یارم، پھر بھی آپ کسی کی جان نہیں لیں گے، قسم کھائیں۔ یارم نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، اور اب اس کا ارادہ سیدھا اسپتال جانے کا تھا۔ آپ کی مدر کو کینسر ہے، لاسٹ اسٹیج،
हम इन्हें नहीं बचा सकते, अब इनका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने इनके सरों पर धमाका किया था। डॉक्टर कोई चांस होगा, कोई इलाज तो होगा। रूह ने यारम को देखा जो जो खामोशी से बैठा डॉक्टर की बात सुन रहा था। कोई चांस नहीं है, इन्होंने बहुत देर कर दी। शायद वो अपनी बीमारी के बारे में खुद भी जानती थी। आई एम सॉरी, अब उनके बचने के कोई चांस नहीं है, इसीलिए हमने जल्द से जल्द उनके किसी करीबी रिश्तेदार को बुलाने के लिए कहा था। डॉक्टर रिपोर्ट इनके हाथ में थमाकर जा चुका था, जबकि यारम कितनी ही देर बुत बना वहीं बैठा रहा। अभी भी तो यारम को इसकी फैमिली वापस मिली थी, वो खुश रहने लगा था, जीने लगा था, और अभी ये खबर, अभी तो अपनी माँ को जी भर के देख भी नहीं पाया था। ठीक है, उसकी गोद में सर रखकर सो भी नहीं पाया था। कैसे गुजारे उसने इसके बगैर जिंदगी पूछ तक नहीं पाया था। ये खबर यारम को अंदर तक हिला गई थी। इसकी माँ जानती थी कि इसे कोई बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कोई इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है। यारम बिना कुछ बोले चुपचाप घर आया था। उसकी उदासी देखकर रूह भी कुछ ना बोली। सारा रास्ता खामोशी में कट गया। वो घर आया तो रूह ने खामोशी से रिपोर्ट इनको थमा दी। अरे क्या लिखा है रिपोर्ट में? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें लिखा है कि आपको कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। आपकी तबीयत बहुत अरसे से खराब थी, लेकिन आपने चेकअप नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा है कि अब आप नहीं बच सकती, 1 महीने से भी कम वक्त है आपके पास। डॉक्टर ने कहा है कैंसर ऐसी बीमारी है जो शुरू होते ही अपने साइड इफेक्ट दिखाने लगती है। डॉक्टर का कहना है कि आपको अंदाजा था कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन आपने अपना इलाज नहीं करवाया। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया इस मामले में? फाइल को एक साइड पर पटकता उनसे पूछने लगा। यारम, ये जरा सी बात नहीं है ये अम्मी। आप मरने वाली हैं, 1 महीने तक नहीं है आपके पास। आपका कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, नहीं बच सकती आप। पर आपको लगता है ये मामूली बात है? वो इतनी ऊंची आवाज में धारा के रूह कांप कर रह गई। यारम बेटा, तुम बात तो सुनो मेरी। फातिमा बीबी ने कुछ कहना चाहा, जब यारम ने अपना हाथ उठाकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। यारम, तो यहाँ क्या कर रहा है? बाहर चल, मैंने तेरे पसंद की बिरयानी बनाई है, आज मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी, जिस तरह से बचपन में खिलाती थी। बहुत जिद्दी था तू, है तो अब भी बहुत जिद्दी, लेकिन तेरे बचपन में तेरी माँ की चलती थी, तो जब भी जिद करता था मैं 2 लगा के तेरा मुंह बंद कर देती थी। फातिमा बीबी हंसती हुई इसके करीब बैठी, जो बेड से टेक लगाए जमीन पर बैठा बैठा था। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको कोई बीमारी है? वो बिना इनकी तरफ देखे बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यारम, बस मेरा वक्त पूरा हो गया है, और ये हम बीमारी, ये तो बस एक बहाना है। सभी इंसान मरते हैं, सबको अपने घर जाना है। हर इंसान का असल असल 2 गज ज़मीन है जिसमें वो हमेशा के लिए समा जाता है। ये दुनिया फ़ानी है, अर्ज़ी ठिकाना है। मुझे तो वैसे भी जाना था, और अब मेरे अल्लाह मुझे बुला रहा है। वो सबको बुलाएगा, और इस तरह से परेशान होकर क्यों बैठा है? हाँ, उठ, मैंने तेरे लिए बिरयानी बनाई है, और फ़िक्र मत कर, मसाले भी तेज़ रखे हैं, जिस तरह से तुझे बचपन में पसंद थी। फातिमा बीबी प्यार से बहलाते हुए उसके करीब से उठने लगी, जब अगले ही लम्हे यारम ने इनकी गोद में सर रखा। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं औलाद होने का हक नहीं निभाया। मैंने आपसे नहीं पूछा आपको क्या चाहिए, आपकी ख्वाहिश क्या है। आपने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और मैं आपको छोड़कर चला गया। कितना खुदगर्ज़ हूँ मैं। अब भी आपको नहीं जाने देना चाहता, अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास रहें, मैं आपकी गोद में सर रख कर सो जाया करूँ, आपसे बातें किया करूँ, आपके हाथ का खाना खाया करूँ। कुछ भी तो नहीं कर पाया मैं आपके लिए, कुछ भी नहीं। यारम अपनी आँख से आँसू साफ करता इनकी गोद में लेटा बताने लगा। अच्छा, तू इसलिए रो रहा है कि तू मेरे लिए कुछ कर नहीं पाया? किसने कहा है कि तुझसे कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया? तुझे पता है तेरे यहाँ से जाने के बाद मेरे दिल के सबसे करीब मेरी रूह थी। मैं बहुत प्यार करने लगी थी इससे, लेकिन इसकी माँ बहनों ने इसके साथ क्या किया, इसे बेच दिया। न जाने वो इसके साथ क्या क्या होता, लेकिन तूने, मेरे बेटे ने इसे बचा लिया, उसे अपना नाम दिया, उससे निकाह किया। मेरी ख्वाहिश थी मेरी रूह की ज़िंदगी संभल जाए, और तूने उसकी ज़िंदगी संभाल ली। बस एक ख्वाहिश थी मेरी कि मैं अपने बेटे की शादी अपने हाथ से करूं, सारी रस्म अपने हाथ से अदा करूं, लेकिन तूने वही रूह से कर ली। बचपन में जब मैं रूह को देखती थी ना, तो अक्सर सोचती थी कि इसको मैं अपने घर की बहू बना लूंगी। फिर देख अल्लाह ने मेरी कैसे सुन ली। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पर हाथ फेरती हुई बता रही थी। जब तानिया ने उन्हें खाना लगने की खबर दी, तो वो जबरदस्ती यारम को अपने साथ बाहर ले आई। मैं शादी कर रहा हूँ ताकि मेरी माँ मेरी शादी की सारी रस्में अदा कर सके। उसने खाने की मेज पर धमाका किया। आपकी ख्वाहिश है ना अम्मी कि आप मेरी शादी की सारी रस्में अपने हाथ से करें, तो मैं आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा। मेरी शादी की सारी रस्में अपने हाथों से करेंगी। मैं कल ही अपने सब दोस्तों को यहाँ बुलाऊंगा, और फिर रूह से शादी करूंगा, और आप जिस तरह से चाहती हैं वैसे ही होगी मेरी शादी। यारम ने फातिमा बीबी से कहा था, जबकि रूह इसे देख रही थी। तो क्या वो इन्हें इन्हीं को सब कुछ बता चुका था? फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए हाँ में
गर्दनें लाई। वो डॉक्टर कहता है आपके पास बहुत कम वक्त है, शायद 1 महीने से भी कम, और मैं इस 1 महीने में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। वो जो मैं नहीं कर सका। यारम ने अपनी आँख में आया आंसू गिरने से पहले ही साफ कर दिया। हाँ, लेकिन मेरी एक और ख्वाहिश भी है, शादी धूम-धाम से हो, इसमें बिल्कुल भी कोई उदास ना हो, सब कुछ खुशी-खुशी हो और मेरा बेटा बहुत खुश हो। क्योंकि अगर दूल्हा उदास हो गया तो मैं भी उदास हो जाऊँगी। मैं उदासी से सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती। यारम, मैं तुम सबको हँसते-मुस्कुराते हुए छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे ना? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।